अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों। मैं हाफ़िज़ सफदरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 23 सूरत-उस-स्वाद की आयत नंबर 15 ता 26 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और शान नज़ुल पढ़ने की शरफ़ अता करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यंज़ुरु हाउलाइ इल्ला स्वैखतन वाहिदतम मा लहा मिन फवाक। वकालू रब्बना अज्जिल लना कित्तना कब्ल यौमिल हिसाब। इस्बिर अला मा यकूलूना वज़्कुर अब्दना। इस्बिर अला मा यकूलूना वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐदी इन्नहु अव्वाब। इन्ना सख्खरनल जिबाला माहू युसब्बिहना बिल अशिय्यि वल इशराक। वत्तैरा मखशूरा कुल्लुन लहू अव्वाब। वशददना मुल्कहू वातिनाउल हिकमता व फसलल खिताब। वहल अताका नबउल खस्म इज़ तसव्वरुल मिहराब। इज़ दखलू अला दाऊद फफज़िया मिनहुम कालू ला तखफ खस्मानि बगा बअदुना अला बअदिन फहकुम बैनना बिल हक्की वला तुश्तित वअदिना इला सवाइस सिरात। इन्न हाज़ा अखी लहू तिस्उन व तिस्ऊन नहजतन वलिय नहजतुन वाहिदा। फ़क़ाल अकफ़िलनीहा वअज़्ज़नी फ़िल खिताब। क़ाल लक़द ज़लमक बिसुआलि नाजतिक इला निआजी व इन्न कसीरम मिनल खुलताई लयबग़ी बअदुहुम अला बअदिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व कलीलुम मा हुम।
وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا زلفى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور یہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی جسے کوئی پھیر نہیں سکتا، اور بولے اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے، تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو، اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوئے سب اس کے فرما بردار تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ اور کیا تمہیں اس دعوے والوں کی بھی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا، انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجئے اور خلاف حق نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی، اب یہ کہتے ہیں وہ بھی مجھے حوالے کر دے اور بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے۔ داؤد نے فرمایا بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کو مانگتا ہے، اور بے شک اکثر ساجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اب داؤد سمجھا کہ ہم نے یہ اس کی جانچ کی تھی تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا تو ہم نے اسے یہ معاف فرمایا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی، بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ یہ نضر بن حارث نے بطور تمسخر کہا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جن کو عبادت کی بہت قوت دی گئی تھی، آپ کا طریقہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار فرماتے اور رات کے پہلے نصف حصہ میں عبادت کرتے، اس کے بعد شب کی 1/3 آرام فرماتے، پھر باقی 6واں حصہ عبادت میں گزارتے اپنی رب کی طرف حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو ویسا مسخر کیا تھا کہ جہاں آپ چاہتے ساتھ لے جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے اور پرندے آپ کے پاس جمع ہو کر تسبیح کرتے، پہاڑ بھی اور پرند بھی۔ فوج و لشکر کی کثرت عطا فرما کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ روئے زمین کے بادشاہوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت
बड़ी मजबूत और कवी सल्तनत थी। 36,000 मर्द आपके महराब के पैर पर मुकर्रर थे। यानी नबुव्वत। बाज़ मुफस्सिरीन ने हिकमत की तफसीर अदल की है। बाज़ ने किताबुल्लाह का इल्म, बाज़ ने फ़िक़्ह, बाज़ ने सुन्नत। कौल फैसल से इल्म कज़ा मुराद है, जो हक को बातिल में फ़र्क व तमीज़ कर दे। ए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आने वाले बकौल मशहूर मलाइका थे। ये आने वाले बकौल मशहूर मलाइका थे जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आजमाइश के लिए आए थे। उनका ये कौल एक मसले की फ़र्ज़ी शक्ल पेश करके जवाब हासिल करना था, और किसी मसला के मतलब हुक्म मालूम करने के लिए फ़र्ज़ी सूरतें मुकर्रर कर ली जाती हैं और मुअय्यन अशख़ास की तरफ उनकी निस्बत कर दी जाती है, ताकि मसला का बयान बहुत वाज़ेह तरीक़ा पर हो और इबहम बाकी न रहे। यहाँ जो सूरत मसला उन फरिश्तों ने पेश की, इससे मकसूद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तवज्जो दिलाना थी इस अमर की तरफ जो उन्हें पेश आया था, और वो ये था कि आपकी 99 बीवियाँ थीं। उसके बाद आपने एक और उसके बाद आपने एक और औरत को पैगाम दे दिया, जिसको एक मुसलमान पहले से पैगाम दे चुका था, लेकिन आपका पैगाम पहुंचने के बाद औरत के आयज़ व अकारिब दूसरी की तरफ इल्तफात करने वाले कब थे? आपके लिए राज़ी हो गए और आपसे निकाह हो गया। एक कौल ये भी है कि इस मुसलमान के साथ निकाह हो चुका था। आपने उस मुसलमान से अपनी रग़बत का इज़हार किया और चाहा कि वह अपनी औरत को तलाक दे दे। वो आपके लिहाज से मना न कर सका और उसने तलाक दे दी। आपका निकाह हो गया। और उस ज़माना में ऐसा मामूल था कि अगर किसी शख्स को किसी औरत की तरफ रग़बत होती तो उससे इस्तदा करके तलाक दिलवा लेता और बाद इद्दत निकाह कर लेता। ये बात ना तो शरन नाजायज़ है, ना उस ज़माने के रस्म व आदत के ख़िलाफ़, लेकिन शान अंबिया बहुत अरफा वाला होती है, इसलिए ये आपके मनसब आली के लायक न था। तो मर्ज़ी इलाही ये हुई कि आपको इस पर आगाह किया जाए, और इसका सबब ये पैदा किया कि मलाइका मुदई और मुद्दा अलैह की शक्ल में आपके सामने पेश हुए। फ़ायदा इससे मालूम हुआ कि अगर बुज़ुर्गों से कोई लग़ज़िश सादिर हो और कोई अमर खिलाफ शान वाक़ हो जाए, तो अदब यह है कि मोतरज़ाना ज़ुबान न खोली जाए, बल्कि इस वाक़या की मिसल एक वाक़या मुतसव्वर करके उसकी निस्बत साइलाना व मुस्तफ़ियाना व मुस्तफ़ीदाना सवाल किया जाए और उनकी अज़मत व एहतराम का लिहाज रखा जाए। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल मालिक व मौला है। मालिक व मौला अपने अंबिया की ऐसी इज़्ज़त फरमाता है कि उनको किसी बात पर आगाह करने के लिए मलाइका को इस तरीक़े अदब के साथ हाज़िर होने का हुक्म देता है, जिसकी गलती हो बेरू रियायत फरमा दीजिए। ये बेरू रियायत फरमा दीजिए, यानी दीनी भाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये गुफ्तगू सुनकर फरिश्तों में से एक ने दूसरी की तरफ देखा और तबस्सुम करके वो आसमान की तरफ रवाना हो गए। और दुम्बी एक कनाया था जिससे मुराद औरत थी, क्योंकि 99 औरतें आपके पास होते हुए एक और औरत की आपने ख्वाहिश की थी। इसलिए दुम्बी के पैराया में सवाल किया गया ये इसलिए दुम्बी के पैराया में सवाल किया गया जब आपने ये समझा ये मसला। इस आयत से साबित होता है कि नमाज में रुकू करना सजदे तिलावत के कायम मकाम हो जाता है, जबकि नीयत की जाए। खल्क की तदबीर पर आपको मामूर किया और आपका हुक्म उन पर नाफिज फरमाया, और इस वजह से ईमान से महरूम रहे। अगर उन्हीं रोज़ हिसाब का यकीन होता तो दुनिया ही में ईमान ले आते। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और इसका शान नुज़ूल इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े अल्लाह ताला के दरबार के अंदर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम पर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारियों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, तमाम मुरमिन को जन्नत फ़िरदौस में आला बाला मक़ाम अता फ़रमाए। और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये इस्तज़ा रहती है कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को, यूट्यूब के चैनल को ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, और इसको वीडियो को खुद भी देखें, अपने बच्चों को तलक़ीन करें, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब दोस्तों के साथ ज़रूर इस यूट्यूब के चैनल को शेयर करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फ़रमाए और दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।